nothing is going to happen in India. And all of a sudden, after June onwards, people have become so bullish. And part of it is because of stock market. Stock market last year, April was 25,000 Sensex. Now it's like 60, it's closing at close to 61,000 now. So I think that has given so much of optimism. So imagine if that unlocking keeps happening, and the economy keeps growing at 8 or 9% for next 5 to 7 years, this will be a very different economy, than where we are right now, or where we could have been, if our economy had grown at this pace over the last 4 or 5 years. नमस्कार सर, आपने अभी मोदी सरकार का नाम बोले कि ये मोदी सरकार ऐसा, और आपने अभी न्यूयॉर्क और इंग्लैंड का भी इसमें दिखाया था कुछ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ जो है इंग्लैंड में लोन अगर एक बैंक से पास हुआ कि इतना ही मिलता है, तो हर जगह जाए इंग्लैंड में वो इतना ही लोन मिलेगा अमाउंट, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। आप एक लोन में गए, किसी को पैसा खिलाया, आपका लोन ज़्यादा पास हो जाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक व्हाट आई सेड अर्लियर इज कि जब तक आपके PSU बैंक्स, बिकॉज अभी भी PSU बैंक्स आप देखो SME में अभी भी मेजॉरिटी मार्केट शेयर PSU बैंक्स का ही है। ज़्यादातर स्मॉल बिजनेसेस अभी भी PSU बैंक्स के पास ही बैंकिंग कर रहे हैं आज भी। आई थिंक वही है कि गवर्नमेंट को बैंकिंग रिफॉर्म्स यहाँ बहुत ज़रूरी हैं। देयर इज नो अदर मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग चाइना, एंड व्हाई आई कीप सेइंग चाइना इज बिकॉज चाइना इज लाइक the kind of growth that China has seen. China and India economy GDP was same in 1980 actually, very very similar, थोड़ा सा ज़्यादा होगा चाइना का। आई थिंक द की इज़ कि गवर्नमेंट को बैंकिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। टिल द टाइम दे डोंट गेट आउट ऑफ बैंकिंग, एंड दे कैन हैव 1 or 2 PSU बैंक्स, नॉट मोर देन दैट, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस विल हैपन। प्राइवेट बैंक्स में उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स का प्रॉब्लम क्या है कि देयर आर वेरी फ्यू प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया, देयर इज वेरी लिटिल कॉम्पिटिशन, and most of them are actually not focusing on the SMEs. They just don't want to focus there. Today the way to solve that problem is not by forcing PSU banks to lend more to SMEs. The way to do is to actually create more competition, and government should not be in the business of lending. Government should be in business of creating guarantees. That is the most important mindset change that has to happen, because you are right, आप US में आज आप जो उनका जो गवर्नमेंट गारंटी प्रोग्राम है, यू कैन गो टू एनी बैंक, यू गेट सेम प्राइसिंग, सेम टर्म्स, एवरीथिंग इज सेम। सो आई थिंक दैट्स एन इंपॉर्टेंट पीस एक्चुअली। और अभी सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो सेफ है वो पोस्ट ऑफिस है। तो जो म्यूचुअल फंड में भी लिखते हैं कि योर माइंड, मतलब प्रीफर करते हैं कि आप एक लाइन नोंद के हिसाब से लिखते हैं कि आप उसको सब माइंड अपने दिमाग से लगाए म्यूचुअल फंड में पैसा। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब अभी जो सेफ है वो तो गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस ही है। See, I think the problem क्या है कि, and obviously India feels that government institutions are very safe, and that's not true actually. What the government has to do is that it has to create mechanism कि bank failure के case में depositor doesn't suffer, actually today. I think then it could be any bank. It could be a private bank, it could be a public sector bank, it doesn't matter. I think post office आज safe इसलिए लोगों को लगता है क्योंकि post office में is totally controlled by government. But nowhere in the world, nowhere in the world, and UK has also got out of it, post office actually is not in deposit taking business. I think post office has to get out of, because today the biggest problem, as I said earlier, is कि government still sets the interest rates in this economy. I think not many people realize कि as a depositor, if I get a little higher interest rate, I feel very happy about it. But how much more I pay everywhere? आप home loan लेने जाते हैं, that is more expensive. आप auto loan लेने जाते हैं, that is more expensive. The reason is very simple, because government through their PPF schemes and their post office schemes are setting the rate at which banks will accept deposits, and then they will disperse money. गवर्नमेंट पर्सन ज़्यादातर पोस्ट में ही ज़्यादा अपना सेविंग करते हैं। सो आई थिंक वी हैव टू काइंड ऑफ आल्सो टेक अ टाइम चेक। सर हम लोग ये क्वेश्चन ले लेते हैं आपके साथ में सेपरेटली, वी विल टेक द क्वेश्चन सेपरेटली। उसका थोड़ा आंसर थोड़ा डिटेल में हम आपसे बात करके बता सकते हैं, क्योंकि ये मतलब देखिए एक बड़ा लंबा चेंज है। ये पोस्ट ऑफिस का जो कल्चर था, इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग सेफ ढूंढते हैं। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो कल्चर था वो ये था कि पोस्ट ऑफिस का रीच हर जगह हर गांव में है,
और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि और कहाँ पे सेव करें। या तो आप गोल्ड में सेव करते थे या फिर आप पोस्ट ऑफिस स्कीम में, पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा सेव करते थे। बट अब जैसे ही अवेयरनेस बढ़ेगी और अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, जैसे रोहित बोल रहे थे कि गवर्नमेंट को इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि हमारा पैसा सिक्योर अगर बैंक में भी होगा और वो बैंक मेरे गांव में होगा तो मैं वहाँ पे भी डालूंगा। तो वो पूरा जो इकोसिस्टम चेंज होगा ना, तो उसके लिए काफ़ी हम मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे सब चीज़ों को इकट्ठा। So we will take one last question right now and wind up the session. And of course, we are available for a conversation over a lunch. So please share with us, and we'll take 2 minutes. सिक्योरिटी लेवल पे किस तरह से मतलब Like cyber security or साइबर सिक्योरिटी, yeah. जैसे कि बहुत सारा आपने देखा होगा Yes. पेटीएम में या फिर गूगल पे बहुत से अकाउंट हैक हो जाते हैं साइबर सिक्योरिटी। बहुत से धोखाधड़ी होती है सर, उसके लिए सेफ्टी के लिए क्या है? So Vineet, you want to? हाँ, तो वो आप सही कह रहे हैं। उसमें देखिए जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ेगी एक इम्पोर्ट पेटीएम अकाउंट हाँ बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल। और उसका आज सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ा रिस्क हो गया है। सबसे बड़ा रिस्क जो हम देख रहे हैं वो पैसे के लिए सेफ्टी का, जैसे बात कर रहे थे सर, वो ये था कि सेफ्टी आपका पैसे की आपकी खुद जिम्मेदारी भी बन जाती है। सो कस्टमर्स के लिए जो अवेयरनेस है कि किस तरह से आप अपने सेफ्टी रखें, तो इसमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और 2 चीज़ें तो हम जैसी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी बनाती हैं वो इंश्योर करती हैं कि वो ना हो पाए और वो बहुत कम से कम हो पाए, उसका रिस्क बिल्कुल ज़ीरो कर दें हम लोग। अब एक है कंज्यूमर के हाथ में, क्योंकि एंड कंज्यूमर के हाथ में जो डिवाइस है और जो मोबाइल फ़ोन है और जो यूपीआई जहाँ से आप कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी तो अभी आपको अगर आप जैसे, मैं तो एक छोटे गांव से बड़ा हुआ और रोज़ हफ्ता तो मैं बस में ट्रैवल करता था, तो वहाँ पे एक स्टेट बस में लिखा रहता था सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक लेवल पे तो आपका पैसा है और आपकी जिम्मेदारी भी है। और वो जैसे मैंने कहा था कि एजुकेशन इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, कस्टमर को खुद एजुकेट होना। तो हम जैसी कंपनी क्या कर सकती हैं, उसमें हम जैसी कंपनी उनको एजुकेट करने में हेल्प कर सकती हैं कि आपके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास ये पावर है तो आप इसको ध्यान से इस्तेमाल करिए, नहीं तो स्कैमर्स जो हैं आपसे ऐसे पैसे हथिया सकते हैं, गलत मैसेज भेज के आपको फंसा सकते हैं। तो उसमें तो जो 2 और एस्पेक्ट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम्स की सिक्योरिटी है, क्लाउड की सिक्योरिटी है, वहाँ पे तो हम लोग बहुत हाई लेवल के एनक्रिप्शन हैं, इस तरह के टेक्नोलॉजी है जिससे हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी डेटा कहीं ना जा सके, वो सब हम कर रहे हैं। हमारा डेटा जो हमारे सिस्टम पे रहता है वो इतना सिक्योर है कि अगर हैकर के पास पहुंच भी गया तो वो उसको रीड नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता। तो वो सब हम करते हैं। लेकिन जो कंज्यूमर लेवल पे है, जो आपने रेज किया, वो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। And I think one thing we are doing in US markets now is कि small businesses के लिए we have actually partnered with few insurance companies actually to actually provide them with better cyber insurance coverage and also help them in that premium financing. Because one of the things is that as a small business, you will also have to invest in better processes, equipment and software. Because weakest link जो होगा cyber security में, that's where hackers will go and exploit. So I think that's a very important piece. That's a huge challenge anywhere in the world right now. But I think that requires constant investments, both on parts of companies like us, but also users. And that awareness is very important. And that's where credit becomes even more important, because if you don't have money, then you won't be able to do that. And that exposes you more. Then that reduces your confidence in digital. Then you start feeling that digital is not safe for me. So I think those are very important aspects, and that's where an evolving economy, and this economy has to evolve, because one side हम बहुत जल्दी digital जा रहे हैं, but if we don't take care of that aspect of cyber security, then hacking and phishing will become even a bigger and bigger problem, for us. And hackers are already looking at places where they can much more easily go and just like they want to pluck the lowest hanging fruit. For them, that's the biggest thing. So I think that's where. And that's why what we have built this platform globally, and that's what we have learned, is that you need to have really very high level of security, and you have to constantly invest in that. And that's what we are doing in this market also. We are bringing those standards, and that's a very important piece. Exactly. I think we will call an end for today's session. We thank you all for attending and making this interactive. I hope you enjoyed the questions and the answers that we had. It was a very illuminated panel that we had today. Both Vineet and Rohit gave us tremendous insights. So please join us for lunch, and
We'll have further conversation over the lunch as well. थैंक यू. बाइट्स मीडिया बाइट्स please. सर ने